हिस्ट्री, है ना। तो एफएमजी सॉल्यूशन का फर्स्ट एडिशन आया, तो इवन फ्रॉम द पब्लिशर साइड आल्सो वी गॉट, समझ लो उतना कम एक्सपीरियंस के साथ बोले 1200 बच्चे बैठे हैं और फादर एडमिल स्कूल में कि वहां पढ़ाना है। तो मैंने कहा कि अच्छा कोशिश करते हैं, देखते हैं, लेकिन आप लोगों को चलना पड़ेगा। तो एवरीवन सपोर्टेड। Hello everyone, welcome back to the another episode of Medic Talks, and today we have a very special guest with us who is the authors of the FMG Solutions, and he helped many students from the last many years. Without further ado, please join me in extending a warm welcome to Dr. Siraj Ahmed sir. Welcome sir, and I'm very happy to see you Yes, here. thank you, Dr. Mukul, for inviting to your podcast. Thank you very much. Thank It's you a so much, pleasure. sir. So, sir, let's start from the discussions. Like, you are the authors, you're the teachers. So, tell us about your journey, like how you had started your journey, and how you have, like, as an authors or as a faculty. It has started actually almost around 11 years ago. Oh, And nice. before being a faculty, I started working on book itself. And book जो आप सबके सामने है, that is FMG Solution with none other than Dr. Deepak Marwa sir. So actually, back in 2014, everything is started back in 2013-14, if I am recalling it correctly. So we got some questions from our students, and I sent it to Marwa sir because he was looking for the question, and at that point of time, uh, I sent him no, via mail, and I got a mail one day that he's planning to work on some content, and if Yes, sir. interested, I can come and join. So I thought, okay, why not? There is no harm in it. तो मुझे लगा कि यार इट्स डॉक्टर मारवा एंड वो क्यों ही बुलाएंगे, है ना। इट्स एंड डेफिनेटली ही वाज नन अदर देन गॉड ऑफ मेडिसिन, एंड आई गॉट द मैसेज एंड आई सेड ओके, आके मिलता हूँ। आई वेंट एंड आई मेट, एंड he explained ki what is the actual plan, and after that he gave me some time that okay ye time hai and these are going to be your subject and they are going to be my subject, and everything was discussed over a period of time. And then suddenly मैंने time नहीं लिया, I did not take time, मतलब ऐसा नहीं कि मैंने सोचा बताऊंगा एक हफ्ते दिन में, said okay let's start, है ना। and I didn't ask even कि क्या इसका outcome होगा, whether I will be a part of the book or not, ना मुझे नाम मिलेगा, पैसा मिलेगा, कुछ नहीं। मैंने कहा काम करते हैं, स्टार्ट करते हैं। Oh, sir. Then by the time I was finished with the book, एक दिन करते करते I asked sir, सर काम तो हो रहा है, but will you be giving me, I mean will I be a part of the book, cover page पे नाम आएगा, because हम लोग तो नाम देख के फैसिनेटेड रहते हैं। तो his reply was like this, क्यों नहीं यार, नाम क्यों नहीं रहेगा, I mean नाम के लिए तो सब काम करते हैं। तो I was like कि यार चलो ठीक है, पैसा वैसा देना मत देना ठीक है, बट नाम तो है। Then we launched the first edition of the book, and पहला एडिशन जो हमने लॉन्च किया था that was through a private publisher actually. मतलब हम लोग खुद ही अपना प्रिंट करा लिए थे पहला एडिशन। Then after that we got approached by some publishers, and with CBS we we actually signed our contract. Yes, and everything was very smooth, and after that once we started working everything become a history, है ना। तो FMG Solution का first edition आया, तो even from the publisher side also we got lot of support from our side as well, and I mean as a faculty Dr. Marwa sir, and उस समय पे this coaching center was there, that was DIMS, and they also supported a lot at that point of time, and ultimately बच्चों को पसंद आया content, the way we plotted the graph, the way we plotted the images, the boxes there, the summarized data, everyone started liking it, and उसके बाद से everything become history. So 14 के बाद से एडिशन आता गया, बीच में कोविड की वजह से एक एडिशन डिले हो गया, तो 10 साल में the 8th edition is currently on the go, and 9th edition will be coming possibly by the end of this year. So ये तो हो गया हमारे ऑथरशिप वाली बात की, बट फैकल्टी वाली जो बात है that actually started back in 16 and 17. Once again I got a call from the same Dr. Marwa sir, and also a couple of calls from the coaching owner जिनके यहाँ एक्चुअली पढ़ाना था, शर्मा जी DIMS चलता था उस वक्त। So he also called, and he offered, and at that point of time I was still in my MD, and I said कि सर possible नहीं है, but still I got a couple of pushes from Dr. Marwa कि नहीं तू कर लेगा, तू कर लेगा। हमने कहा कि सर अभी तो बहुत ही मतलब बिना बहुत ही स्टार्टिंग फेज है, अभी तो मैं खुद ही अपना नोट्स तैयार कर रहा हूँ, बट ही सेड कि एक बार ट्राई कर, ऑटोनॉमिक नर्वस सिस्टम पढ़ाना शुरू कर। नहीं, ही सेड कि एक बार ट्राई कर, तो मैंने कहा ठीक है मैं ट्राई करता हूँ, एंड आई स्टार्टेड प्रिपेयरिंग। तो मैंने बोला सर ठीक है 1-2 महीना टाइम होगा, बोले नहीं 3 हफ्ते टाइम है, 3 वीक्स टाइम। एंड सडनली मतलब वहां पे बहुत सारे बच्चे थे, मतलब 1000 स्टूडेंट्स थे, और 1000 स्टूडेंट के सामने ऑल ऑफ ए सडन यू हैव टू गो एंड परफॉर्म, आप समझ रहे हो।
एंड ये 10 साल भी नहीं, 16 की बात है, तो कितना 8 साल हो गया करीब, 8 साल पहले की बात है। तो 8 साल पहले मतलब मैं करीब 10-12 किलो और कम, है ना, 12-15 किलो कम, और 12-15 ईयर का कम एक्सपीरियंस, है ना, ऐसा समझ लो, उतना कम एक्सपीरियंस के साथ बोले 1200 बच्चे बैठे हैं और फादर एडमिल स्कूल में कि वहां पढ़ाना है। तो मैंने कहा कि अच्छा, कोशिश करते हैं, देखते हैं, लेकिन आप लोगों को चलना पड़ेगा। तो एवरीवन सपोर्टेड, दे ऑल सपोर्टेड, एवरीवन, शर्मा जी, मारवा सर, एवरीवन सपोर्टेड, दे सेड कि ठीक है आप करो, हम लोग हैं साथ में। मैंने तैयारी शुरू कर दी, 3 हफ्ते का टाइम था, 2 हफ्ते बीत गए। और जो उस समय की एक बुक आती थी, शर्मा एंड शर्मा, और एक बुक थी हमारे पास कैटजर, तो दोनों बुक से मिला करके स्टार्टेड प्रिपेयरिंग नोट्स, जो भी नोट्स सामने अपना तैयार किया। और एमसीक्यूज चूंकि थे हमारे पास ऑलरेडी एफएमजी सॉल्यूशन से, तो उसका कोई प्रॉब्लम था नहीं, वी इनकॉर्पोरेटेड ऑल द इन आवर नोट्स। बट एक हफ्ते पहले फिर से कॉल आया कि हो गई तैयारी। हमने कहा हाँ सब थोड़ा थोड़ा तो हो गया, और काइनेटिक्स डायनामिक्स तो मैंने मतलब ठीक ठाक कर लिया, अब बैठ के बस खाली मुझे रटना है, मतलब पढ़ना है, कैसे पढ़ाना है, मेमोरिक्स वगैरह तो डाल दिया आपने जो भी है, अब रटना है खाली। तो बोले काइनेटिक्स डायनामिक्स, तो मैंने कहा हाँ। कह रहे जनरल फॉर्म पढ़ाएगा, हमने कहा हाँ। तो बोले बच्चे सो जाएंगे, बोरिंग है जनरल फॉर्मा। तो मैंने कहा फिर करना क्या है? तो कह रहे ऑटोनॉमिक्स पढ़ा दो, वो बच्चों को नहीं आती है। तो हमने कहा कि 2 हफ्ते से मैं जनरल फॉर्म पढ़ रहा हूँ, और एक हफ्ते पहले अब आप बोल रहे कि ऑटोनॉमिक्स, एक हफ्ते भी नहीं, 8 6 दिन थे। और मुझे अभी भी याद है वो थर्सडे का दिन था जिस दिन क्लास में लेना था, और पिछले थर्सडे फ्राइडे को ये बात हो रही थी। जी सर। तो मैंने कहा कि सर मतलब ये तो चैलेंजिंग हो जाएगा, बट सर की नहीं, एक बार ट्राई कर फिर से। बहुत सारी बातें हुई, 1 घंटे 1.5 घंटे बात हुई, लेकिन नटशल में ये निकला कि नहीं तू कर, और तू कर लेगा। एक होता है ना कि कई बार तू दो कर दोस्त लेगा। लोग होते हैं, या तो मतलब कलीग होते हैं, और एक उसको पुश करने वाला कि होता है तू कि कर नहीं तू लेगा, कर चल लेगा, तू चल ना, तू तू चल। चलना। है ना? तो पुश कर देंगे। तो मैंने कहा अच्छा ठीक है, करते हैं। तो फिर से ऑटोनॉमिक नर्वस सिस्टम स्टार्ट किया, और गुड न्यूज वाज दैट कि मुझे एक दिन में 6 घंटे पढ़ाने थे, तो पूरा ऑटोनॉमिक नर्वस सिस्टम पढ़ना मतलब उतना प्रेशर नहीं था। मैंने कहा अच्छा ठीक है, मैं कोशिश करता हूँ। तो फिर से पढ़ना शुरू किया, ऑटोनॉमिक नर्वस सिस्टम से स्टार्ट किया, सीएनएस, पीएनएस, है ना, ऑटोनॉमिक नर्वस सिस्टम क्या है, कैसे है। और गुड न्यूज इज दैट कि उस समय पे जहाँ पे मतलब जिस कॉलेज में मैं था, उस समय पे ऑटोनॉमिक नर्वस सिस्टम ही कराया जा रहा था। अच्छा। तो बड़े सीनियर प्रोफेसर थे, उनका लेक्चर चल रहा था। तो मतलब एमबीबीएस के बच्चे जाते थे या नहीं जाते थे, हम जरूर जाते थे, और बड़े प्यार से आराम से बैठ जाते थे, और अपना आईपैड, उस समय मेरे पास जो आईपैड था, अपना आईपैड लेकर बैठ जाते थे, और खुद अपना मतलब सुनते थे कि अच्छा वो क्या बताना चाह रहे हैं। बिकॉज ही वाज वेरी सीनियर प्रोफेसर, मतलब मैं बता दूं कि वो 3 जनरेशन को पढ़ा चुके थे, और फिर भी ओके। वो मतलब रिटायरमेंट के एज में थे, और वो बच्चों को पढ़ाते थे, बच्चों की भीड़ लग जाती थी। वो इतना मतलब अच्छा पढ़ाते थे उस समय पे हमारे यहाँ पे। तो अगेन जाके फिर सुना, मैंने देखा उनके स्टडीज, उनके थोड़ा टेक्निक्स को देखा, कैसे क्राउड को हैंडल करते हैं, एंड हाउ ही मेक श्योर द थिंग्स बिकम वेरी वेरी इजी, है ना। तो अगेन उन सब चीजों से थोड़ा सा हिंट मिला, एंड आई स्टार्टेड माय जर्नी लाइक दिस इन अराउंड 16 एंड 17, समवेयर अराउंड 16 और 17 में मैंने पहली क्लास ली थी फादर एग्नेल ऑडिटोरियम में, डीआईएमएस इंस्टीट्यूट था, विद स्टूडेंट्स ऑफ 1100 टू 1200। आप मेरे फेसबुक पेज पे जाओगे ना, डॉक्टर एमएस फार्माकोलॉजी, तो उसमें जो पहला जो कवर पेज दिखा ना, वो मेरे पहले क्लास की फोटो है, फार्माकोलॉजी क्लास की फोटो है। तो उस समय पे मतलब वो पहले क्लास है जो 1100 बच्चे करीब बैठे हुए थे, ऊपर नीचे पूरा मिला करके, और आगे तक बच्चे बैठे हुए थे, वो मेरा पहला क्लास था। Sorry to interrupt. Like, Yeah. how was your feelings at that time? मतलब मेरे सारे सिंपैथेटिक स्टिमुलेशन हो रहे थे, मतलब पैर, हाथ तो नहीं दिख रहा था, लेकिन पैर लिटरली ट्रेमर कर रहे थे। हमें जैसे मैं बच्चों को पढ़ाता हूँ, सिंपैथेटिक ड्राइव होता है, तो फाइट एंड फ्लाइट रिस्पांस, ट्रेमर, तो लिटरली सारी चीजें हो रही थी। और पैल्पिटेशन का तो पूछना नहीं है। Yes, पर फिर भी मैंने definitely. बोला, सबको बोला कि नहीं आप लोग चलिए मेरे साथ, मतलब शर्मा जी थे और जो भी लोग थे, एटलीस्ट आप लोग रहिएगा, कुछ होगा तो संभाल लीजिएगा। और उस समय प्रॉब्लम ये था कि वो 1200 बच्चे जो है उस इंस्टीट्यूट में, एक बहुत ही सीनियर फैकल्टी हम लोग के जो पढ़ाते थे सर, सडनली वहां पे मतलब वो सर का क्लास नहीं हुआ था, और उन्होंने मुझे वहां पे बोला है कि नहीं आपको करना है। तो मैंने कहा था कि सर थोड़ा बहुत ऊपर नीचे होता तो चलता है, लेकिन आप सोच रहे हो आप 1200 बच्चे को बोल रहे हो पढ़ाने के लिए, और जिस फैकल्टी का, इट्स लाइक दिस कि शाहरुख खान का वेट कर रहे हैं बच्चे, है ना, और शाहरुख खान की जगह पे आप जो है कि, है ना, किसी न्यू कमर को सामने जाकर खड़ा कर दिए। तो आप समझ रहे हो ना कि वो सिचुएशन थी कि आप समझो कि कोई बच्चा Noodles डॉक्टर खाने मारवा का का। वेट कर रहा है, स्टेज पे डॉक्टर मारवा के पढ़ाएंगे, और कोई जाकर के ना न्यू फ्रेशर आदमी जाके सामने पढ़ाना शुरू करते। तो प्रेशर तो बहुत था, लेकिन एट द सेम टाइम ये भी था कि नहीं ठीक है, ट्राई करते हैं, क्योंकि इतना पुश मिल गया था कि नहीं तू कर लेगा, तो ट्राई कर लेते हैं, ट्राई कर लेते हैं, ट्राई कर लेते हैं, और हम लोग हैं वी आर द बैक। तो शुरुआत में तो बहुत बैकलैश इन सेंस कि बच्चे बोल रहे नहीं नहीं नहीं, पीछे से वोटिंग भी शुरू हो गई। तो मैंने भी थोड़ा सा हंसी मजाक किया, मैंने कहा कोई बात नहीं। अच्छा वो बच्चे, गुड न्यूज की बच्चे जानते थे एफएमजी सॉल्यूशन के थ्रू, उस इंस्टीट्यूट में मेरा आना जाना था, तो बच्चे और थोड़े तो वो से थोड़ा सा फैमिलियर तो थे। पॉजिटिव मैंने वाली। कहा ठीक है 2-3 घंटे क्लास कर लेते हैं,
और उसके बाद से फिर ब्रेक में बात कर लेंगे जैसा भी रहेगा। तो पीछे से बहुत सारे बच्चे, 4-5 बच्चे, 5-7 बच्चे पीछे से निकल के जाना शुरू कर दिए कि नहीं हम तो सर का वेट करने आए थे। और ये जो मैं बात बोल रहा हूँ बाई हार्ट मैं सच बोल रहा हूँ, जो एक्चुअली हुआ था कि बच्चे जाना शुरू कर दिए और समझ लो 1000-1200 बच्चे हैं और एक हॉल में बैठे हुए, बड़े से हॉल में, और मैं सामने स्टेज पे बैठा ना, स्टेज पे खड़ा हूँ, मुझे इंट्रोड्यूस किया जा रहा है कि अब आपको ये पढ़ाएंगे फार्मा। तो बच्चों को जो बाहर चले गए, जो स्टाफ थे, कम से कम 12-15 स्टाफ लगे होते थे अपने बच्चों को मैनेज करने के लिए, तो उन्होंने बोला कि सर हम लोग कोशिश करेंगे, और उस स्टाफ से बच्चे लड़ाई करने के लिए भी उतारू हो गए कि नहीं हम तो फीस दिए थे इनके लिए और आप कैसे ऐसे कर दिए है ना, पंच ऐसे कर, पंच तो नहीं बोला लेकिन हाँ मतलब झगड़ा करने के लिए बच्चे रेडी थे। तो बोला सर ऐसा है कि आप 2 घंटे बैठ जाइए। उन्होंने बोला कि सर थोड़ी देर बैठ जाइए, ब्रेक के बाद से हम बात करेंगे, शर्मा जी नहीं है, और उसके बाद से हम लोग कोशिश करेंगे जो भी जिसको आप बोल रहे हैं वी विल ब्रिंग द फैकल्टी। तो बच्चे मतलब ठीक है, उनको लेकर आए कैसे भी करके, जो 8-10 बच्चे जो बाहर निकले थे उनको भी लाया गया, सारे बच्चे बैठे। और जो नए बच्चे थे उनको तो ज्यादा कुछ फर्क पड़ता नहीं था, जो पुराने बच्चे थे वही ज्यादा परेशान थे कि नहीं हमको सर चाहिए, ये नए टीचर से हमको नहीं पढ़ना है। बट स्टिल बच्चे बैठ गए। मैंने कहा ठीक है 2 घंटे आप बैठते हैं फिर देखते हैं। आई स्टार्टेड बेसिक चीज जो मैंने स्टार्ट किया था वही कि क्या होता है नर्वस सिस्टम, और नर्वस सिस्टम के कितने पार्ट हैं, क्यों इसको ऑटोनॉमिक बोलते हैं, ऑटोनॉमिक के क्या क्या पार्ट है, मतलब एकदम सीक्वेंस में जो सिस्टमिक मैंने बनाया था ना, सिस्टमिक तरीके जाना शुरू किया, नोट्स करना शुरू किया। और लकीली मेरे समय उसमें एसर का एक लैपटॉप हुआ करता था, एसर R7, मैंने नया नया लैपटॉप खरीदा था। मैंने, डॉक्टर मारवा ने और हमारे एक फ्रेंड थे डॉक्टर सदीक, उन्होंने भी, 3 लोगों ने मिलकर वो लैपटॉप खरीदा था। तो वो लैपटॉप है ना स्क्रीन टच लैपटॉप था, मतलब स्क्रीन टच आप समझ रहे हो, 15-16 वालों में नया कॉन्सेप्ट था, आईपैड वगैरह उतना फेमस नहीं था अभी। तो स्क्रीन टच लैपटॉप पे मैंने पढ़ाना शुरू किया, उसमें जूम वगैरह भी था, तो थोड़ा सा है ना टेक्निकल सपोर्ट भी मिला। तो मैंने लिख के पढ़ाना शुरू किया, और जब लिखते चला गया पढ़ते चला गया, और बच्चे बैठे, और पहला जो सेशन चला वो 2.5 घंटे का चला। 10-15 मिनट के बाद से क्लास पिन ड्रॉप साइलेंस रहा और चलता गया, बच्चे नोट्स लिखते गए, क्योंकि उस समय पे पीडीएफ दे दीजिए का कोई कॉन्सेप्ट नहीं था। अभी तो बच्चे ये है ना कि लिखते नहीं है, बोलते पीडीएफ, उस समय सारे बच्चे जल्दी लिखते हैं, लिख रहे थे, क्योंकि छूट गया तो छूट गया। तो वो जो पहला क्लास था मेरा, वो एक गेम चेंजर था मेरे लिए, या लाइफ चेंजर था फॉर कमिंग इनटू टीचिंग। ठीक है, तो टीचिंग में आने से पहले भी मतलब मेरे पेरेंट्स, मतलब मेरे फादर स्पेशली, वो नहीं चाहते थे कि मैं टीचिंग करूं, वो चाहते थे कि भाई लड़का डॉक्टर है तो डॉक्टरी करे, पेशेंट देखे, गले पे स्टेथोस्कोप लगाए। और कुछ ऐसे इंसिडेंसेस हुए, मैं बीच में आरएमएल में जब मैं काम कर रहा था, जहाँ पे मेरा एक्चुअली माइंड चेंज हुआ था, दैट वाज इन 15-16, मैं आरएमएल में जब काम कर रहा था राममनोहर लोहिया हॉस्पिटल में, तो वहां पे एक दिन एक इंसिडेंट ऐसा हुआ था, अराउंड एसीएमओ की पोस्टिंग थी, और एक हमारे साथ एक रेजिडेंट है सर्जरी के, तो एसीएमओ असिस्टेंट सीएमओ की पोस्टिंग होती है, रात में इमरजेंसी में कैजुअलिटी में देखना होता है। तो रात में एक आरटीए का केस आया, एक्सीडेंट हुआ था, एक ड्रंक एंड ड्राइव का केस था, किसी को किसी लड़की ने हिट कर दिया था, और उसको ला करके फिर स्टिचिंग वगैरह कराया गया, जो भी सर्जरी के रेजिडेंट थे, जर्मन लोग थे, और हम लोग ने मिलकर सफाई वगैरह करके, मुझे अभी भी याद है कि इतने ज्यादा उसके सर में ये कीड़े, मतलब शीशे पड़ गए थे ना, कि उसको हमें एक एक करके फोर्सेप्स से निकालना पड़ रहा था, छोटा 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 छोटा। तो बहुत देर बाद जब हम लोग कर करा के वापस आए, हाँ भाई ठीक है, उसका स्टिचिंग तो कर दिया, सर फट उठ गया था, हो गया। तो वहां पे ना एक लेडी थी, मोहतरमा थी, तो बड़ा शाउट कर रही थी, तू जानता भी है मैं कौन हूँ, तू जानता भी है मैं क्या कर सकती हूँ। तो सर्जरी वाले जो हमारे एक सर थे, रेजिडेंट थे उस समय, JR2 थे वो शायद, जो एसीएमओ पोस्ट में थे, वो बोले तू जो भी हो, है ना, केस तो बनेगा, है ना, मतलब उसका लीगल वर्क हो रहा है। तो बातों बात में ना बात इतनी हीट अप हो गई कि मैं जब आया तो ये ऑलरेडी हीट अप आर्ग्यूमेंट चल रहा था, तू जानता भी है मैं कौन हूँ। तो उस मोहतरमा ने ना उठा के सैंडल उठा के फेंक दिया डॉक्टर के ऊपर मार दिया। उस समय पे इतना मतलब वीडियो, इंस्टा, आई थिंक इतना फेमस भी नहीं था कि लोग वीडियो बनाए, बना भी नहीं, समाउ इतना आकस्मिक हुआ कि मारा तो फेंका, लगा तो नहीं डॉक्टर साहब को, लेकिन वो जाके पकड़ भी ली। फिर मतलब पता चला कि वो किसी मतलब पॉलिटिकल बैकग्राउंड से बिलोंग करती थी, और किसी मतलब मिनिस्टर की या किसी की डॉक्टर रही होंगी, तो पार्टी वगैरह करके आ रही थी, और आराम से मतलब उसको ठोक दी थी गाड़ी से अपने। तो एमएलसी का केस वगैरह तो बना, जो भी था, बाद में जो हुआ वो पुलिस वगैरह जाने। लेकिन वो जो एक इंसिडेंट था ना, उसने मुझे बहुत अंदर से डिस्टर्ब कर दिया कि यार मतलब हम लोग रात में 2 बजे बैठे हैं सबके लिए, और वी आर ट्राइंग टू सर्व द पीपल, लेकिन अभी ये जो इंसिडेंट हुआ ना, ये ठीक नहीं है डॉक्टर्स के लिए। मतलब बहुत दिन तक मैं सोचता रहा उसके बारे में, और उसके बाद से मतलब सडनली पता नहीं क्या हुआ कि 16-17 में कंटिन्यूअस डॉक्टर्स के ऊपर अटैक होते चले गए। अब तो एक सीक्वेंस ऑफ इवेंट हुआ, थोड़ा सा एक तो ये हुआ, बाकी डॉक्टर्स पे कई सारे न्यूज आते गए कि डॉक्टर्स पे यहाँ अटैक हुआ, वहाँ अटैक हुआ, तो ये लगातार चलता गया। 15-16 में ये बहुत हुआ, 16-17 में बहुत हुआ। तो मतलब somehow ये मुझे पता नहीं एक नियति थी, या कह लीजिए कि नहीं मुझे टीचिंग नहीं आना है,
मुझे ना प्रैक्टिस से या डॉक्टर से थोड़ा सा मैं पीछे हटता चला गया, और उसमें मैं ऑलरेडी एकेडमिक्स में था, क्योंकि मैं बताया था आपको 14 में मैं ऑलरेडी बुक पे काम कर रहा था, तो मेरा इंटरेस्ट काफी आ गया था ऑलरेडी कि मुझे टीचिंग नहीं जाना है। तो somehow I convinced my parents कि what I am doing I know, आप लोग थोड़ा सा पेशेंस रखिए, I will do good because I know what I'm doing। एंड अगेन उसके बाद से ठीक है, जब मैं खुश हूँ तो बाकी सब लोग भी खुश हैं। तो ये था एक छोटा सा कहानी हमारे प्रैक्टिस में नहीं जा करके टीचिंग में आने के लिए, और हाउ आई स्टार्टेड माय ऑथरशिप वाली जर्नी। तो सर जो ये वाला लाइक ये वाला फेज है तो वो स्टार्टिंग से चलता रहा, लाइक डॉक्टर्स के ऊपर अटैक होना और ये सारी चीजें लाइक काफी टाइम, क्योंकि पहले बहुत कम उस टाइम पे पहले लाइक बहुत कम था, लेकिन सडनली उस टाइम पे हम एक बोल सकते हैं कि वहाँ पे इंस्टाग्राम या फिर मतलब ज्यादा मोबाइल्स वगैरह नहीं थे, क्योंकि मोबाइल्स वगैरह का तो 19 के बाद ज्यादा स्टार्ट हुआ है सबके पास मोबाइल्स होना। राइट राइट, ठीक मुझे है। भी ऐसा, तो मैं तो नहीं था इतना इंस्टाग्राम, इतना मैं तो इंस्टाग्राम पे बहुत नया हूँ। तो इस तब शायद मुझे याद है ये मैं चीजें इंस्टाग्राम पहले पे भी भी होती रही है। एक साल भी नहीं हुआ मुझे इंस्टाग्राम यूट्यूब पे, तो मैं बहुत नया हूँ। तो उस समय पे तो और भी नहीं था। सत्यमेव जयते करके कोई एपिसोड आई थी, जो उस समय हम डॉक्टर्स लोग जब मीटिंग करते थे, चाय पे चर्चा करते थे, तो बोलते थे यार कि उसमें ना कुछ दिखाया गया है डॉक्टर्स के अगेंस्ट, कि कैसे डॉक्टर एक्चुअली हॉस्पिटल में क्या क्या होता है, किसी किसी ने एक एपिसोड बना दिया। तो उसको लेकर ना पब्लिक में एक और एग्रेशन डेवलप हुआ था उस समय। आई रिमेम्बर इट, हम लोग बहुत बात करते थे जब भी 2 बजे रात में निकलते थे ना, क्योंकि आरएमएल के कैंपस में बहुत सारे कोने कोने पे वो चाय की टपरी, जूस वगैरह का बहुत लगा था। जब भी निकलते थे हम लोग तो बहुत बात करते थे कि यार क्यों इतना अटैक हो रहा है और कैसे हो रहा है, इसमें जरूर है ना, इसका तो जरूर हाथ है। तो बहुत सारी चीजें भी हुई थी उस समय, है ना। आमिर साहब की एक वो मूवी आई थी, मूवी नहीं जो ये थी, सत्यमेव अक्षय जयते। कुमार की एक और मूवी आई थी उसके बाद से, है ना। तो दैट कुड बी वन ऑफ द रीजन कि पब्लिक को एक बार आप सडन मास को दिखा रहे हो ना कि ये है डॉक्टर, जबकि एक्चुअल में वो फिगर सही नहीं। हाँ, कहीं कहीं कुछ लोग अगर ऐसा गलत करते हैं तो आप उसको लेकर के पूरे डॉक्टर कॉम को जनरलाइज नहीं कर सकते, है ना। तो वो एक Thank you so much. I think this is the sweet and beautiful journey that you shared, and you was like you tell everything like what was your journey and how was your feelings. So it was like great to, दैट इज लाइक, बिल्कुल yeah, that was great to hear like because no one knows about this type of the journey that you face, and in the starting मेरे जो बहुत क्लोज फ्रेंड है उनको पता है, मेरे जो बहुत क्लोज फ्रेंड है सिर्फ उनको पता है, बाकी नहीं पता, क्योंकि मौका ही नहीं मिलता है इतना कुछ बात करने का। सर एक बट चीज, जो बहुत क्लोज फ्रेंड है उनको एक बात मैं बताता हूँ लाइक वी नो फ्रॉम योर एफएमजी सॉल्यूशन रियली, लाइक ओनली द लास्ट ईयर आई गॉट टू नो दैट यू टीच द फार्माकोलॉजी। अच्छा चलिए ये भी अच्छी बात So है। next question is that you are the great faculty of the pharmacology, and pharmacology like it's a volatile subject. So discussing about the all the volatile subjects, how to remember those topics, how to remember those subjects, and the main thing like how it would be recall in the examination halls, and how to make that easy in the short span. राइट राइट, दैट्स अ वेरी गुड क्वेश्चन एक्चुअली, क्योंकि बच्चे पढ़ाई तो कर लेते हैं एंड दे फिनिश, दे गेट अ सेंसेशन ऑफ यू नो अ फीलिंग ऑफ अकम्प्लिशमेंट आल्सो आफ्टर फिनिशिंग द सब्जेक्ट। लेकिन प्रॉब्लम कहाँ पे आता है, वो उसको ला करके एग्जामिनेशन में रिकॉल या रिटेन नहीं कर पाते। Yes, उसके sir. लिए मैं बार बार बोलता हूँ कि यू शुड हैव प्रॉपर स्टोरीज, प्रॉपर निमोनिक्स एंड प्रॉपर वे ऑफ रिमेम्बरिंग देम, है ना। जैसे कि मैं अगर कोई ड्रग बताता हूँ तो ऐसे नहीं कि कुछ भी निमोनिक्स बता दिया, इट शुड बी कोरिलेटेड एक्चुअली, है ना। जब तक आप उसको कोरिलेट करके नहीं पढ़ोगे, ड्रग्स को रिटेन करना थोड़ा सा डिफिकल्ट तो है अनडाउटेडली। वो कह पाना कि नहीं जी वोलेटाइल नहीं है, ये गलत होगा मेरे पार्ट से, डेफिनेटली वोलेटाइल है, एंड फॉर यू टू रिमेंबर दिस उसका सिर्फ एक ही मंत्रा है, एंड द मंत्रा इज रिवीजन। मैं बार बार बच्चों को बोलता हूँ रिवीजन कैसे करोगे। एक तो तरीका ये है कि जैसे टीचर पढ़ा रहे साथ में टीचर भी कर लो। दूसरा तरीका मैं बोलता हूँ कि एक बार हो गया मान लीजिए एंड यू वांट टू रिवाइज, एटलीस्ट गिव 20 मिनट्स ऑन फार्माकोलॉजी फॉर द डेली बेसिस। 20 मिनट डेली आप दीजिए। अब उस 20 मिनट में एक तरीका ये, अगर आपने नोट्स किया हुआ है, नोट्स को फ्लिप करिए, ट्राई टू सी कि उस पेज में मैंने क्या इंफॉर्मेशन दिया हुआ है, बिकॉज 50% ऑफ द इंफॉर्मेशन डज नॉट रिक्वायर रटिफिकेशन। रटिफिकेशन मतलब मगअप, है ना। 50% इंफॉर्मेशन को आपको रटने की जरूरत नहीं है। ओनली 50%, 40 to 50% जहां पे ड्रग्स है, क्लासेस है, कैटेगरी है, साइड इफेक्ट है, जिसको याद करना है, जो आपको दिमाग में बिठाना है, उस कंडीशन के लिए हम आपको निमोनिक्स देते हैं, हम आपको स्टोरीज देते हैं। जैसे कि अगर आपने मेरी कभी क्लास अटेंड करी होगी तो फॉर एग्जांपल लेट्स से वेलप्रोवेट की बात आती है, तो वेलप्रोवेट इज अ वेरी ना ब्रॉड स्पेक्ट्रम एंटी एपिलेप्टिक। तो वेलप्रोवेट की पढ़ाते पढ़ाते आई विल बी डिस्कसिंग विद यू स्टोरी ऑफ ओल्ड ग्रैंडफादर,
कि हाउ इज ओल्ड ग्रैंडफादर इफेक्टिव इन द फैमिलियल वर्क, एक्स्ट्रा फैमिलियल वर्क। ओल्ड ग्रैंडफादर का एज 50 to 100 के बीच में है। ओल्ड ग्रैंडफादर इज हैविंग, है ना, ट्रेमर नाउअडेज। ओल्ड ग्रैंडफादर लॉस्ट हिज हेयर, है ना, अपनी जवानी में वो लिख कर लेते थे, तो उनका लिवर पैंक्रियास दोनों जवाब दे रहे हैं। तो कुछ कुछ इन्फॉर्मेशन मैंने स्टोरी दे दिया, तो आपको वैल्यूएट बारे में सारी बात याद रहे जरूरी नहीं, लेकिन ग्रैंडफादर वाली स्टोरी याद रहेगी कि मैंने बताया था एज क्या था 50 to 100, तो आपको पता है अच्छा 50 to 100 दैट मींस वॉलप्रेट का थेराप्यूटिक प्लाज्मा कंसंट्रेशन 50 to 100। 50 to 100. ओल्ड ग्रैंडफादर ही इज वेरी एक्सपीरियंस, वो एक काम को कई तरीके से करना जानते थे, तो वॉलप्रेट नोज हाउ टू डू, यू नो, हाउ टू डिक्रीज ग्लूटामेट एक्टिविटी, हाउ टू आल्सो इंक्रीज द गाबार्जिक एक्टिविटी, है ना। तो मल्टीपल फैमिलियल एंड एक्स्ट्रा फैमिलियल में भी इफेक्टिव है, दैट मींस अपने एपिलेप्सी के लिए तो है, नॉन एपिलेप्टिक यूजेस भी बहुत है, जैसे माइग्रेन हो गया, सेलेनहैम, जैसे आपका रोमेटोइड कोरिया, रोमेटिक कोरिया हो गया, है ना, प्रोफिलैक्सिस ऑफ माइग्रेन, बाइपोलर डिसऑर्डर, रैपिड साइक्लिक, बहुत सारे कंडीशन में इनको हम यूज कर रहे हैं ना, ये इनके अदर यूजेस हो गए। और साइड इफेक्ट जैसे ट्रेमर, जैसे मैंने बताया कि अब बूढ़े बाबा है ना, उनका ग्रैंडफादर भी जैसे Yes, है, ट्रेमर आ रहा है, लॉस्ट हिज हेयर, लिवर पैंक्रियास, तो ये सारी की सारी कहानी से हो गई। तो अब आपको सिर्फ कहानी याद रखनी है, एवरीथिंग यू विल बी एबल टू रिकॉल। तो कोई भी पूछेगा ऐसे कि आपका वेलप्रोइड का थेराप्यूटिक प्लाज्मा कंसंट्रेशन क्या है, तो यू ऑलरेडी कैन कोरिलेट विद ओल्ड 56. ग्रैंडफादर एंड द एज वाज 50 to 100 एंड दैट्स इट। तो वैसे ही डिफरेंट स्टोरीज, डिफरेंट निमोनिक्स जो हम लोग क्लास में डिस्कस करते हैं, आई ऑलवेज अर्ज द स्टूडेंट कि एटलीस्ट एक बार उसको रिवाइज करिए, अपने दोस्तों के साथ डिस्कस करिए, एंड आई एम श्योर यू विल बी एबल टू रिटेन इट फॉर लॉन्गर टाइम। और उन सभी के लिए सिर्फ एक काम करना है, रिवीजन। रिवीजन इज द की फॉर एनी ऑफ दिस एग्जामिनेशन दैट इज कमिंग अलोंग। Okay, sir. Thank you so यस much, मुकुल। sir. I think it was a great things that students can know. And the next question, sir, like this is the like only the 2 months left for the July FMG. So, what is the best strategy like they can follow for now? Because this is the time for the revisions, and they have to concentrate here at these times. आपके चैनल के माध्यम से मैं बता दूं सारे बच्चों के लिए, दिस इज द बेस्ट टाइम दैट यू स्टार्ट रिवाइजिंग ऑलरेडी। और जो बच्चे मान लो रेगुलर क्लास कर रहे हैं, जिनका सिलेबस पूरा नहीं हुआ है, उनके लिए भी कि अपना सिलेबस तो पूरा करते रहिए, लेकिन whatever subject that has been done already in the previous, previously whatever subject that has been done, start up समेटना शुरू करिए, start recollecting all the information, start revising all of them। तो 1 से 1.5 घंटे के लिए आपको अपने पुराने सब्जेक्ट को यू हैव टू स्टार्ट रिवाइजिंग, यू हैव टू स्टार्ट रिपीटिंग देम, एंड यू कंटिन्यू टू डू योर व्हाटएवर अपकमिंग सब्जेक्ट दैट इज बीइंग डन इन योर कोचिंग सेंटर। जो बच्चे सेल्फ स्टडी कर रहे हैं उनके लिए तो इट्स अ वेरी हाई टाइम दैट स्टार्ट प्रिपेयरिंग योर शेड्यूल of at least 2 revision, जिसको मैं बोलता हूँ 40 plus 20 में डिवाइड कर लीजिए। 40 that should go right for the very first, I mean एक रिवीजन जो अभी बचा हुआ है, and last revision that will be done in the 20। अब इस 40 को जो आप डिवाइड करते हैं 40 डेज में, इसमें मेक श्योर कि आप अपने डेली के 2 से 3 सब्जेक्ट रखिए। 2 to 3 सब्जेक्ट किस फॉर्म में, जैसे एक माइनर सब्जेक्ट, फॉर एग्जांपल फॉरेंसिक ले लिया, साइकियाट्री ले लिया, एक प्री या पैरा क्लिनिकल का सब्जेक्ट ले लिया, फॉर एग्जांपल मान लो साइकियाट्री लिया तो साथ में यू कैन टेक फार्माकोलॉजी, ठीक है, और एक कोई भी बीच वाला सब्जेक्ट अगर ले पाते हो तो 2 से 3, मैंने बोला जरूरी नहीं कि 3, और जरूरी मैंने ये भी नहीं बोला कि 2 ही पे रखना है, 2 से 3 आप ले लीजिए। एक और मिडिल वाला सब्जेक्ट मान लीजिए पीडियाट्रिक्स, ईएनटी, ऑफ्थल, ये वाले टाइप के जो सब्जेक्ट है जहाँ से 10-12 नंबर आते हैं, वहां से एक सब्जेक्ट आप उठा सकते हो। और ट्राई टू गिव एटलीस्ट 10 आवर्स ऑन द डेली बेसिस। 10 घंटे देने के लिए कम से कम आपको 12 से 14 घंटे लग जाएंगे, बिकॉज आप पढ़ोगे, ब्रेक लोगे ना। बिल्कुल सर। तो ट्राई टू गिव एटलीस्ट 4 आवर फॉर द बिगर सब्जेक्ट जो भी उसमें है, फिर 1.5 से 2 घंटे जो बीच वाला है, और 1 से 1.5 घंटे जो छोटा वाला है, ठीक है। जो भी समय बच जाता है, अब इसके बियॉन्ड आप जितना एक्स्ट्रा टाइम निकाल पाते हो उसमें यू ट्राई टू द एमसीक्यूज। तो ऑन एन एवरेज डेली का, हर एक बच्चे का डेली का एटलीस्ट मैं मान के चल रहा हूँ कि अब रिवीजन शुरू हो गया है तो 12 से 13 घंटे का शेड्यूल तो उनका बना ही होगा। तो इसमें बोलता हूँ 4 घंटे का एक हो गया, 2 से 2.5 घंटे का एक हो गया, 6 घंटे हो गए, और 1.5 घंटे का एक और हो गया, है ना, 7, 7.5, 8 घंटे का शेड्यूल मैं दे रहा हूँ। बाकी ये जितने टाइम बच जाते हैं, है ना, 2 घंटे 3 घंटे जो बच जाते हैं, ट्राई टू डू द एमसीक्यूज। आप एमसीक्यू के लिए कोई दिन तय मत करिए कि मैं एमसीक्यू 1 महीने के बाद करूंगा, 1 हफ्ते बाद करूंगा, या सिर्फ एमसीक्यू मंगलवार का दिन करूंगा या संडे के दिन करूंगा, ऐसा कुछ नहीं। यू शुड बी इन कंटिन्यूअस टच ऑफ द एमसीक्यूज ऑन द डेली बेसिस। मैं बोलता हूँ यूजुअली 25 to 30% ऑफ योर डेली टाइम शुड बी डेडिकेटेड फॉर द एमसीक्यूज। तो आप इसको डेली करते जाइए, कुछ नहीं, एफएमजी सॉल्यूशन करिए, आपके पास तो वो अवेलेबल है। तो एफएमजी सॉल्यूशन थियरी फॉलोड बाय एफएमजी सॉल्यूशन, या जिस भी जगह से आप कर रहे हो, जिस ऐप से कर रहे हो, उस ऐप के एमसीक्यू करो आप, है ना। बट याद रखिए कि आप एफएमजी के लिए अगर तैयारी कर रहे हो तो थोड़ा सा आप अपने आप को लिमिट करिए। हाँ, मैं ये नहीं कहूंगा कि सारे एनआईसी के क्वेश्चन कर लो, और ये भी नहीं बोलूंगा कि नीट पीजी की तरफ देखना भी नहीं, देखिए, बिकॉज उसके टॉपिक्स भी रिपीट होते हैं, एंड दैट हैज ऑलरेडी बीन इनकॉर्पोरेटेड इन, सो यू डोंट हैव टू लुक ना मच हियर एंड देयर।
तो ज्यादातर अपने एफएमजी ओरिएंटेड क्वेश्चन के ऊपर ज्यादा ध्यान दीजिए। अगर टाइम मिलता है देन यू कैन गो एंड डू द नीट पीजी के 3-4 साल के पीवाईक्यूज। ओके सर, दैट द ग्रेट सर, क्योंकि नीट पीसी का भी आई थिंक उतना ही मैटर करता है थोड़ा बहुत क्योंकि लास्ट एटलीस्ट 2 years वी नीड टू डू राइट, और 4 years। 2 से 3 साल